The caseload of Omicron COVID-19 virus has been rising in our country again. Until now, 41 persons have been identified who have been infected by Omicron. So the tentacle of Omicron has been spreading in other states also, much to the concern of us. मैं सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमें सचेत रहना चाहिए, हमें और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पिछले जैसे कोविड-1 और कोविड-2 की लहर के चलते हमें ये गलती ना करे कि हमें लाखों की लोगों की जान गंवाने पड़ी। इसलिए अभी से हमें हर किस्म के तैयारी हमें रखना चाहिए ये देश को ओमिक्रॉन संक्रमण से रोकने के लिए। सर, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारा वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी भी है कि यूरोप में, सारे यूरोप में बच्चों के लिए ये वैक्सीनेशन चालू हो गए हैं। तो हमारा देश में बच्चे और एडोलेशन, चिल्ड्रन एंड एडोलेशन जो है, इन लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। वैक्सीनेशन तो हो रहे हैं, 50% वैक्सीनेशन हो गए हैं, ये सुन रहे हैं हम लोग, लेकिन बच्चे को और एडोलेशन को, इन लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में सरकार को नया सिरे से सोचना चाहिए। बिकॉज आई थिंक सर रिकॉर्ड पे हैं कितने वैक्सीनेशन लग चुके हैं। हाँ, सुन नहीं रहे हो आप? नहीं सर, आप नेता हो, आप तो को इतनी वैक्सीनेशन 50% सरकार के हिसाब के मुताबिक 50% लग चुके हैं। मैंने कहा सर, मैंने ये भी कहना है कि बच्चों की, चिल्ड्रन और एडोलेशन, इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है, लेकिन यूरोप की, सारे यूरोपियन यूनियन में इन लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, इनोक्यूलेशन किया जा रहे हैं। मैं सरकार को यह कहना चाहता है, ए टाइनी स्पार्क इफ नेग्लेक्टेड कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर एडिफाइस। सरकार सचेत रहे, सरकार सावधानी बरते, और सरकार की तरफ से अगर कोई तैयारी की हमें तैयारी की जो अभी सूची है वो अगर प्रदान करे तो हम बहुत खुश होंगे। कल्याण बनर्जी जी। Sir, I just tell sir, today it is now reported that because of the Omicron at UK, one person has expired. I have nothing to say. I am requesting, if you just tell us what are the measurements have been taken, measures have been taken, have been taken by the central government to protect this diseases, how to come out from this, and this is not being spread at all. That is the only thing I want to tell. उनकी हालत रोज़ बरोज़ बदतर होती जा रही है। कल ही हमला हुआ श्रीनगर में एक पुलिस बस पर, जनाब उसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ। कल लद्दाख में लद्दाख बंद था। 5 अगस्त के बाद हर दिन कोई ना कोई तशद्दुद वाला वाक़ा। तो हमने गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर पर एक मुख्तसर बहस की जाए, शॉर्ट डिस्कशन किया जाए। तो जनाब मेरी गुजारिश होगी आप इजाज़त दें ताकि हम उस पर शून्यकाल। पी वेलुस्वामी जी। पी वेलुस्वामी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, பேச வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஒட்டஞ்சத்திரம், பழனி மற்றும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல மாவட்டங்களில் சுமார் 20 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் கண்வெளி குளோரிசியா சூப்பர்பா என்ற மூலிகை தயாரிக்க பயன்படும் விளைபொருளை விவசாயிகள் பயிரிடுகிறார்கள். இதை முற்றிலும் இடைத்தரகர்கள் ஏமாற்றி குறைந்த விலைக்கு கொள்முதல் செய்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள். இதனால் விவசாயிகள் உரிய விலை கிடைக்காமல் பொருளாதார ரீதியாக பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள். எனவே ஒன்றிய அரசு இதை கருத்தில் கொண்டு விவசாயிகளை பாதுகாக்கின்ற வகையில் ஒன்றிய அரசு இந்த விளைபொருளை கட்டுப்படியாக விலை கொடுத்து நேரடியாக கொள்முதல் செய்து விவசாயிகளை பாதுகாக்க வேண்டுகிறேன். அவைத்தலைவர் அவர்களே, தென்னிந்தியாவில் திருப்பதிக்கு அடுத்து அதிக பக்தர்கள் தரிசிக்கும் புண்ணியதலம் பழனி மலையாகும். கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஆண்டுதோறும் வந்து செல்கின்ற புண்ணியதலமான பழனி மலையில் சித்தர் வாழ்ந்ததாக வரலாற்று பதிவுகள் இருக்கிறது. அகத்திய முனிவர் உருவாக்கிய நவபாசன முருகன் சிலை இதற்கு ஒரு உதாரணம். எனது தொகுதி மக்களின் கோரிக்கையும் உலகம் முழுவதும் உள்ள முருகப்பெருமானை வணங்கும் பக்தர்களின் கோரிக்கையும் இங்கு சித்த வைத்திய ஆராய்ச்சி நிலையம் ஒன்று அமைக்க வேண்டும் என்பதே. எனவே ஒன்றிய அரசு பள்ளிமலை பகுதியில் சித்த வைத்திய ஆராய்ச்சி நிலையம் அமைத்திட வேண்டும் என பக்தர்கள் சார்பாகவும் எனது தொகுதி மக்கள் சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவைத்தலைவர் அவர்களே, கொடைக்கானல் ஒரு மிகப்பெரிய சுற்றுலாத்தலமாகும். தினமும் ஆயிரக்கணக்கான உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய சுற்றுலாத்தலமாக விளங்குகிறது. சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் பழனிக்கு தொடங்கினால் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த ரோப்கா திட்டத்தின் மூலமாக சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும், அதன் மூலமாக வருவாய் பெருகும் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி. எனவே ஒன்றிய அரசு இந்த ஆண்டிலேயே சுற்றுலாத்துறையின் சார்பாக கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கி இந்த ரோப்கார் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டுகிறேன்.
அவைத்தலைவர் அவர்களே, மேலும் உலகம் பெயர்பட்ட சபரிமலைக்கு ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் செல்கிறார்கள். திண்டுக்கல்லிலிருந்து நிலக்கோட்டை, வத்தலக்குண்டு, பெரியகுளம், தேனி, கம்பம் மற்றும் கூடலூர் வழியாக கோட்டை வரை செல்லும் புதிய ரயில் வழித்தடம் அமைக்க வேண்டும். இந்த வழித்தடத்தில் சுமார் சாலைகள் குறுகலாக பாதைகளாக இருப்பதால் அடிக்கடி விபத்துகள் के ஏற்படுகிறது. नवाज सकनी आप எனவே नहीं बोलना ஒன்றிய चाहते माननीय सदस्य? நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. என்னுடைய ராமநாதபுரம் பாராளுமன்ற தொகுதி பெரும்பான்மையாக கடலோர பகுதியை உள்ளடக்கியது. அந்த மீனவர்கள் தினம் தினம் படக்கூடிய இன்னல்களையும் ஆபத்துகளையும் அச்சுறுத்தல்களையும் பற்றி இங்கே பேசுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அரசினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருவது அந்த மக்களுடைய பிரதிநிதியான என்னுடைய கடமை என்பதை உணர்ந்து இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வருகின்றேன். ஒருபுறம் என்னுடைய தொகுதிக்கு உட்பட்ட மற்றும் தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினால் ஒருவித அச்ச உணர்வோடு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். மறுபுறம் இயற்கை சீற்றம், நடுக்கடலிலே விபத்து போன்ற பல்வேறு மரணங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அந்த உயிரிழப்பை தவிர்ப்பதற்கு பாதுகாக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு இந்த அரசிற்கு இருக்கிறது என்பதை வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இந்த அவையிலே பலமுறை இலங்கை கடற்படையினுடைய அத்துமீறல்களை பற்றி வலியுறுத்தி இருக்கின்றேன். இலங்கை கடற்படையினால் தமிழக மீனவர்கள் தாக்கப்படுகின்ற போது இந்த அரசு ஒரு மென்மையான போக்கையை கடைபிடித்து வருகின்றது. இதற்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றேன். அது இல்லாமல் மீன்பிடிக்க மீனவர்கள் செல்கின்ற போது இயற்கை சீற்றமோ விபத்தோ ஏற்படுகின்ற போது நடுக்கடலிலே படகு கவிழக்கூடிய நிலையிலே அவர்களை மீட்கக்கூடிய பணி என்பது ஒரு சிரமமான சவாலான பணியாக இருக்கின்றது. அதற்கு கடலோர காவல் படையினர் தான் அந்த மீட்பு பணியை மேற்கொள்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு கூடுதலான படகுகளை ஒதுக்க வேண்டும். குறைவான எண்ணிக்கையிலே அந்த ரோந்து படகுகள் இருக்கின்றது. குறைவான எண்ணிக்கையிலே கடலோர காவல் படையினரும் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு அந்த மீட்பு உபகரணங்களும் குறைவாக இருக்கின்றது. அதிக அளவிலே அவர்களுக்கு அந்த உபகரணங்களையும் மீட்பு உபகரணங்களையும் கடலோர காவல் படைக்கு எரிபொருள் உள்ளிட்ட உபகரணங்களையும் ஒதுக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறேன். சமீபத்தில் கூட என்னுடைய பாராளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட ராமேஸ்வரம், தங்கச்சிபுரம் உள்ளிட்ட தொண்டி, கோட்டைப்பட்டினத்துடைய மீனவர்கள் அந்த விபத்துகளிலே உயிர் பலியாகி இருக்கின்றார்கள். இப்படிப்பட்ட சூழல் ஏற்படும் போது அரசு கூடுதலான அக்கறை செலுத்தி அவர்களை மீட்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இயற்கை சீற்றம் ஏற்படுகின்ற நேரத்திலே கடலோர காவல்படையால் படகுகளால் கூட மீட்க முடியாது. அந்த நேரத்தில் ஹெலிகாப்டர் உதவி தேவைப்படுகின்றது. அந்த நேரத்தில் ஹெலிகாப்டர் விரைவாக வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். श्री सीपी जोशी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारा देश ऋषि परंपरा का राष्ट्र है। श्रेष्ठ आर्य संस्कृति के समुच्चय आर्यावर्त में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में समय समय पर अवतारों ने जन्म लिया और ऋषि मुनियों ने लोक का नेतृत्व कर जन गणकों के साथ सतपथ हेतु साधा। इन्हीं अन्वेषकों ऋषियों के ज्ञान तप अन्वेषणों से भारत विश्व गुरु कहलाया। आर्य संस्कृति के प्रसार से वासुदेव कुटुंबकम का स्वप्न साकार किया जा सकता है। आर्य संस्कृति के ध्वजवाहक अवतारों, प्रचेताओं, ऋषियों की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए महान भारतीय संसद ने कई संकल्प पारित किए। स्मृति स्वरूप डाक टिकट भी जारी किए। दिव्य आत्मा को समर्पित संस्थाओं का गठन भी किया और इनकी मूर्तियों का अनावरण भी किया। संपूर्ण विश्व के करोड़ों समाज के आराध्य देव भगवान श्री परशुराम जी के ऊपर डाक टिकट जारी होना चाहिए, क्योंकि सारस्वत क्षेत्र, काबुल, अफगानिस्तान, कश्मीर, हिंदू कुश, गांधार, पेशावर, रूस, बलूचिस्तान, ईरान, फारस, कैस्पियन सागर आदि का सुदूर क्षेत्रों में स्वयं जाकर आर्य अनार्य जनों का राजनीतिक सांस्कृतिक एकीकरण कर कृष्णत्व विश्वमार्यम के मंत्र को सिद्ध किया। अध्यक्ष महोदय, जामदत्त परशुराम जी ने अनेक शास्त्रों की रचना की। शास्त्रों के साथ ही कई ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, रुद्रास्त्र को सिद्ध किया। पाशुपत अस्त्र, भुसुंडी, बंदूक, शतनी, तोप का आविष्कार भगवान श्री परशुराम जी ने किया। भगवान श्री परशुराम जी ने परवर्ती वाम मार्ग की साधना का परिष्कार कर परशुराम तंत्र विकसित किया और वे सशस्त्र दृष्टि के प्रयोक्ता थे। मर्यादा प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण की तरह परशुराम जी ने में सतयुग व त्रेता के संधि काल में जनसाधारण व जनजातियों को संगठित कर आर्य संस्कृति को बचाने का कार्य किया। पूर्व में भी हमारे आग्रह पर भारत सरकार ने भगवान परशुराम जी की तपस्या स्थली मातृकुंडिया में पैनोरमा बनाए हो, चाहे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर, चाहे वीर जालामन्ना, वीर जयमल जी राठौर के ऊपर डाक टिकट जारी करना हो, चाहे ट्रेन का नामकरण वीरभूमि एक्सप्रेस करना हो। मेरा आपसे आग्रह है कि आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से आग्रह है कि आने वाली अक्षय तृतीया के ऊपर
भगवान परशुराम जी के ऊपर डाक टिकट जारी हो, ताकि देश के करोड़ों लोगों के आराध्य देव परशुराम जी के उनके मन में एक श्रद्धा का और भाव पैदा होगा और आपका सानिध्य मिलेगा तो निश्चित रूप से भगवान परशुराम जी के ऊपर एक डाक टिकट जारी हो। मेरा आपके माध्यम से प्रताप राव सरकार से जाधव। यही मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछली 2 साल से कोरोना की वजह से और ये साल में भी बहुत सारी बारिश और बाढ़ आने से महाराष्ट्र में जो सोयाबीन की फसल लेने वाले किसान हैं उनका बहुत मात्रा में नुकसान हो चुका है। इसीलिए बाज़ार में उनको थोड़ा ठीक भाव एमएसपी से थोड़ा ज़्यादा भाव बाज़ार में मिल रहा है, लेकिन पोल्ट्री फार्म के एसोसिएशन ने हमारे पशु संवर्धन मंत्री आदरणीय रूपाला जी को पत्र देके सोयाबीन की आयात करने की मांग उनको की है और सोयाबीन के दाम बाज़ार में घटाने के या कम करने के लिए उन्होंने वहां पर निवेदन दिया है। मेरे माध्यम से माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि किसान पहले ही 2 साल से बहुत दिक्कत का सामना कर रहा है। ये साल सोयाबीन का फसल थोड़ी कम हो गई, लेकिन दाम बाज़ार में अच्छे मिलने से किसानों को थोड़े 2 पैसे ज़्यादा मिलने की आशा है। तो मेरी आपके माध्यम से अतिशय नम्रता से विनंती है कि सोयाबीन की जो भी आयात को मुदतवार देने वाली है उनको रद्द किया जाए। जब तक कि किसानों के पास का सोयाबीन बाज़ार में बिक नहीं जाता तब तक को किसी भी सोयाबीन की आयात की इजाज़त न दी जाए। और मार्च के आगे अगर इसमें अगर सोयाबीन की आयात करने की ज़रूरत होगी तो उसके लिए हमारा विरोध नहीं है, लेकिन आज अगर हम आयात करने की सोचेंगे तो बाज़ार में सोयाबीन के दाम नीचे आ जाएंगे और इससे किसानों का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजीव प्रताप रूडी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। और आपके संरक्षण में एक विषय जो निरंतर उठता रहा और पूरा भारतवर्ष सुनता रहा, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि बिहार पिछड़ा है और उनका ये बयान पूरे भारतवर्ष में आया है कि बिहार पिछड़ा है और मैं स्वागत करना चाहूँगा इस बयान का। और मैं ये भी मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री भी बिहार के प्रति सचेत हैं और देश की सरकार भी कभी ये नहीं कहती है कि बिहार के विकास को हम छोड़ के चलेंगे और जितनी भी पैसे की ज़रूरत होगी हम उस राज्य को उपलब्ध कराएंगे। ये भी देश के प्रधानमंत्री का मानना है। तो इस सदन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस विषय को हम लोगों ने, लेकिन अगर जहाँ निवेश चाहिए वहाँ नीति की ज़रूरत होती है और बिना नीति के कोई निवेश करना संभव नहीं हो पाता, ये सब हम जानते हैं। और मूलतः सदन के भीतर जब हम आते हैं तो नीति बनाते हैं और फिर भारत सरकार नीति के आलोक में पैसे देती है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आज यदि बिहार को पिछड़े राज्य का दर्जा मिलना है तो हमारी नीति क्या है। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि आखिर में बिहार में जो लाखों छात्र जो राज्य छोड़ करके बाहर पढ़ने जाते हैं उन्हें बिहार में रोकने के लिए हमारी नीति क्या है। करोड़ों की संख्या में मजदूर गरीब बिहार छोड़ करके बाहर जाते हैं, उनको बिहार में रोकने की नीति क्या है। बिहार में कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है, देश में कोई भी पिछले 70 साल में ऐसा उद्योगपति हम नहीं कह सकते कि जो बिहार का हो। एक भी ऐसा संरचना नहीं है, ना ही हमारे राज्य में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है और ना ही कोई ऐसे खेल की व्यवस्था है जिसको अंतर्राष्ट्रीय, आज तक भारत में एक भी अंतर्राष्ट्रीय खेल जो दुनिया के स्तर पर हो सकता है बिहार में नहीं हुआ। आखिर उसका रोड मैप क्या है। आज तक बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का निर्माण नहीं हुआ। बेंगलोर, कर्नाटका, हैदराबाद, दिल्ली में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया। बिहार में नागर विमानन की नीति क्या है। महोदय, अगर इसी प्रकार से हम पूछते जाए, आज सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय में अगर छात्र विश्वविद्यालय के बाहर पढ़ रहे हैं, कोटा आपके शहर में जाके पढ़ते हैं, तो आखिर बिहार में शिक्षा नीति क्या है। पूरे देश में आईटी का क्षेत्र, बड़े बड़े शहरों के बगल में आईटी है, आईटी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहरी विकास है। बिहार में उसकी नीति क्या है। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार पूरी नीति स्पष्ट करे ताकि बिहार के वैसे लोग मछुआरे हो, गरीब हो, किसान हो, उनके भाई बात को हम आगे बढ़ा सकें। नीति के साथ निवेश लेकर के बिहार को आगे बढ़ाया जाए, ये मैं आपके माध्यम से राज्य की सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान वर्तमान में विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में अनियमितताओं तथा भेदभाव की तरह आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, विगत दिनों में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश के लिए जो साक्षात्कार लिए गए हैं उनमें लिखित परीक्षा में
के लिए 70 तथा मौखिक साक्षात्कार के लिए 30 अंक अभ्यर्थी अंक निर्धारित किए गए। साक्षात्कार में 30 अंक में कई अभ्यर्थी जिसमें से अधिकांश SC ST तथा OBC वर्ग के छात्र हैं का 1 या 2 या 3 नंबर अंक ही उनको प्राप्त हुए हैं। महोदय, 30 अंक के वाइवा में सिर्फ 2 या 3 अंक देना किसी भी तरह से तार्किक या न्यायपूर्ण नहीं है। JNU में कम फीस तथा क्वार्टरली सिस्टम की वजह से अधिकांश बच्चे वंचित वर्ग से आते हैं और छात्र जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके साथ ही महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद का ध्यान एक और गंभीर मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति से संबंधित है। पूरे देश में SC ST छात्रों की छात्रवृत्ति समय से मिलने के कारण अधिक से अधिक इस वर्ग के लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर शिक्षित हो रहे थे। लेकिन जब से वर्तमान सरकार जब से वर्तमान सरकार आई है, तब से SC ST और OBC के छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए इनकी छात्रवृत्ति भी बंद कर दी गई है। महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि SC ST और OBC के छात्रों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति जारी की जाए। धन्यवाद। I have given a request to change my subject, sir. Kindly consider, sir. Sir, I would like to. सेक्टर बोला आपने, शिपिंग सेक्टर करना है। हाँ, shipping sector में, sir. Sir, thank you very much, sir, for allowing me. Sir, shipping is the lifeline of people of Lakshadweep. Sir, at present, sir, 4 passenger ships are kept idle without operation. Adding to the line, a very big ship which is carrying 700 passengers, MV Kavaratti, is also laid up because of a urgent fire got to the starboard side engine, and that ship also is not operational. I must congratulate the captain and master and crews or officers of that ship to extinguish the fire. Otherwise, it would have been a big disaster for the entire country, because it was carrying 620 passengers on that board. But that ship is also laid for the last 15 days in Andhra waters without even taking to the maintenance. My point is not that, sir. See that the 4 or 5 major ships are not operational. The students who wanted to come for their CTET examination, patient want for expert treatment, they're all stranded because of the non-availability of ship. When I inquired the reason why all these 5 ships are not operating, the reason they are giving is lame excuses, saying that there is no dock facility at Cochin shipyard. That is not the reason really, sir. The reason here is that the fund required for the operation of the ship to the Lakshadweep Development Corporation Limited, which is a public sector undertaking, and that undertaking, the present administrator is not giving the fund for the operation. That is the real fact, sir. Now the second issue is that why he is doing that? He have a special motive to shift the operation of shipping sector from Lakshadweep Development Corporation Limited to Shipping Corporation of India. This is a very dangerous situation, sir. In that, nearly 3,000 families are directly employed in the shipping sector. If it is going to the Shipping Corporation of India, there is no guarantee for the job for those people. Second thing, sir, this is a public sector, both are a public sector undertaking company. The manager, I have just completed, sir, because very important issue, sir. Please, I am the only lone MP from Lakshadweep, please, sir. So, see, the percentage of managerial thing which is charged by LDCL is just 2.5%, where Shipping Corporation of India is charging 13%. And why? I don't know what is the logic behind transferring of these ships, sir. With that, LDCL have gained lot many experience in this sector, sir. So my conclusion is that if such a dangerous decision is taken by administrator, I would like to ask the Home Ministry or the Shipping Ministry whether any such proposal has been received. अनुमान बेनीवाल जी, 1 minute. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी, my humble submission to and request to the Honorable Ministry, Home Ministry and Shipping Ministry is, through you, sir, is any such decision for far-reaching constitution not be allowed to take in a hasty manner and requires lot of thinking process. So I urge upon the government to give directions to UT administration to stop any such movement immediately, so that the above elucidated issues could be taken care well, and also request the Honorable हनुमान बेनीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का एक गंभीर विषय और एक गंभीर बीमारी जो इस देश के अंदर छोटे बच्चों में ये बहुत तेजी से फैल रही है। आज हमारे देश में स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी 1 और टाइप 2 तथा मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो गंभीर लाइलाज बीमारी, इसके इलाज के लिए दवाई और इंजेक्शन विदेश से आते हैं। अध्यक्ष महोदय, स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 पीड़ित बच्चों की मांसपेशियां कमजोर होती है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, छोटे बच्चे को स्तनपान करने में और सांस लेने में दिक्कत होती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती है कि वो हिलने डुलने लायक तक भी नहीं रहती है। अध्यक्ष महोदय, लाइलाज बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिसके कई
प्रकार ये एक प्रगतिशील बीमारी जिसमें धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंग काम करना बंद देते हैं। आप एक तो समय- मांग करो ना एक क्या? सेकंड सर, समय ऐसा आता है कि इंसान खुद से पानी भी नहीं पी सकता। मेरे संसदीय क्षेत्र के एक छोटे बच्चे के इलाज को लेकर मैं मंत्री जी से मिला भी था। उन्होंने बीमारी के इलाज के लिए 16 करोड़ से अधिक कीमत का इंजेक्शन जो विदेश से आयात करते हैं उसमें सरकारी मदद का आश्वासन भी दिया। मंत्री जी, विदेशी कंपनी की मोनोपोली से इसकी भारत में कीमत बहुत ज़्यादा है। इस तरह की दवाओं के अनुसंधान को भारत में बढ़ावा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं करूंगा कि इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका में सरकार ने कहा कि देश में ऐसे 5 लाख पीड़ित है और प्रत्येक बच्चे के इलाज के लिए 6 करोड़ रुपए व्यय करने पड़ेंगे, जबकि लोकसभा में 23/9/2020 को एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रोफी मरीजों के आंकड़े नहीं हैं। फिर उच्च न्यायालय में 5 लाख की संख्या किस आधार पर बताई? इन विसंगति पर आप बताएं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि जितने भी इस बीमारी से पीड़ित बच्चे इस देश के अंदर है, अगर ये जो 16 करोड़ रुपए कंपनियां मन मर्जी से या इंजेक्शन 16 करोड़ में देती है उसमें हम कोई मदद नहीं कर पाते। अगर इसकी कीमत घटाई जाए या मुफ्त किया जाए, मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का बड़ा मन है, ऐसे इलाज बिल्कुल मुफ्त होने चाहिए ताकि देश के अंदर एक मैसेज जाए, विदेशों में मैसेज जाए, गरीब आदमी भी अपना इलाज करा सके। हम लोग मिलकर भी इस मामले में कुछ और करना भी चाहें, लेकिन 16 करोड़ रुपए एकत्रित मिलकर भी हम लोग नहीं कर पाते और देखते ही देखते बच्चा फिर मौत के आगोश में चला जाए। इसमें सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। आप सरकार को निर्देशित करें। सेंथिल कुमार, यस, एस सेंथिल कुमार उसी गंभीरता से संज्ञान लिया है। Vanakkam, Speaker, sir. This is regarding the unscrupulous taxation policy of Union government on petrol and diesel. So prior to 2014, the crude oil per litre was around $100, and after 2014, it has reduced even up to $40 per barrel. So before August 2014, the excise tax on petrol was 9.48 per litre for petrol, and diesel was 3.57 per litre. Even after the central government reducing the prices, the excise tax still is for petrol 27.90 and diesel 21.80. So in our state, Tamil Nadu, our Chief Minister M.K. Stalin, even before the Union government could had reduced the price for petrol by 3 rupees. And we would like to further reduce, though it cost the exchequer cost of rupees 1,060 crores per year, that we would still further like to reduce. But the financial constraint on the state, as left by the ADMK government prior, has left in a dire state the government. In the year 2020-21, the central excise collected by the union government was around 3,71,908 crores, and the share given to the states in 2021 was 19,972 crores. Sir, just one point. Geeta Koda. Sir, why this disparity? And also the retail outlet dealers are affected. Sir, the price is not increased by the retail outlet dealers in spite of the oil companies having a huge profit. Hence, they should follow the recommendation of the ACC for pending for more than 40 months. Sir, I urge upon you through the petroleum minister to reduce the taxes on petrol and diesel and to increase the margin for retail outlet dealers for petrol bunk. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार के 9 रत्नों में से एक HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो रांची झारखंड में स्थित है और पिछले 63 वर्षों से भारी उद्योग क्षेत्र में देश का मान बढ़ा रही है। HEC के द्वारा देश को अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेल, इस्पात और खनन क्षेत्रों में पूंजीगत उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता में से एक है। इस उद्योग प्रतिष्ठान में 30/1/2021 तक अध्यक्ष महोदय 1,301 नियमित मजदूर और 1,701 ठेका मजदूर श्रमिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय कि ये सभी लोग पिछले कई महीनों से यानी कि पिछले 7 महीनों से इन लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिसके वजह से ये सभी लोग सड़कों पर उतर गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कोरोना काल भी है और इन लोगों के परिवार भुखमरी के कगार पर है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मैं इतनी ही मांग रखती हूँ कि HEC कंपनी में कार्यरत इन मजदूरों को यथाशीघ्र पिछले 7 माह का बकाया और साथ ही साथ चालू महीने का वेतन दिया जाए ताकि इनके परिवार भी सुरक्षित रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री सौमित्र खान। सर,
बोलने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, मेरे बहुत गुरुत्वपूर्ण की बात है। मैं 6 साल से बात बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा गुरु रामकृष्ण देव ठाकुर का जो कामारपुकुर एंड जयरामबाटी है, ये दोनों में बांकुड़ा तारकेश्वर जो रेल लाइन है, ये अभी तक इसका ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी तक इसका रेल पथ कंप्लीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये इतनी बड़ी रेल पथ है, लेकिन 2-4 किलोमीटर के लिए जो भावादिगी है वो थोड़ा सा चेंज करके होगा तो वो भी करना चाहिए। और राज्य सरकार जमीन नहीं देगा तो फिर भी ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि 1 करोड़ आदमी का ये रेल पथ हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ईस्टर्न रेलवे बार जितने बार बोलता हूं, मैं 6 साल से बोल रहा हूं, लेकिन कभी भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। और इसके साथ साथ सर बांकुड़ा मोसाग्राम जो रेल पथ है उसका कनेक्शन पॉइंट जो देगा वो भी नहीं हो रहा है। सर मेरा यही बोलने का इच्छा है सर, एक काम जल्द हो जाए। रेल मंत्री से यही मेरे मांग है। मेरा अवधि का विष्णुपुर तारकेश्वर रेलपथ, यहाँ पे बहुत सारे जो आदमी आते हैं, इसका कंप्लीट होना चाहिए। श्रीमती सुप्रिया सुले। Government of India has a very good scheme for people with special needs. It's called the Assistance to Disabled Persons for Purchase Fitting of Aids and Appliances. It's the ADIP scheme. Sir, cochlear implant and hearing aids are an integral part of the scheme, and a cochlear implant is a very expensive machine and a surgery a family goes through. But after the cochlear implant, there is a lot of wear and tear, and the cost of repairing regularly is about 85,000 rupees. So I request the department to include one cochlear implant, and after that, till the child is 18 or 21 and he or she are on their feet, we need to support these children. So if they can add this 85,000 as an extension, would be a wonderful statement. श्री राम कृपाल यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा के अंतर्गत फुलवारी विधानसभा क्षेत्र एम्स की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कुछ वर्ष पहले एम्स प्रारंभ हुआ, तब अटल जी की गवर्नमेंट थी उसी समय से सर, और ये एम्स कार्य कर रहा है। जो कमी है उसको दूर करने का प्रयास वर्तमान सरकार भारत सरकार ने की है, और अभी भी बड़े पैमाने पर वहाँ कमी है। प्रतिदिन वहाँ एवरेज प्रतिदिन 4000 रोगी ओपीडी में आते हैं सर, मगर वहाँ चूँकि पूरे बिहार का एक पहला एम्स जो चल रहा है तो काफ़ी लोड है, न सिर्फ पटना का बल्कि बिहार के अन्य भागों से, बल्कि नेपाल के इलाके से भी लोग आकर के वहाँ इलाज कराते हैं सर। तो लोड ज़्यादा है। कुछ डिपार्टमेंट 37 डिपार्टमेंट है सर जो काम चल रहा है, पर 3-4 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जिस पर डॉक्टर ही नहीं है सर। न्यूरोलॉजी का, ऑक्नोलॉजी का, हेमाटोलॉजी का, ये सर। आईसीयू का बेड कम है, जनरल बेड कम है सर, जिसके वजह से वहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरा पहला आग्रह ये होगा आपके माध्यम से सर कि जो डॉक्टर्स की कमी है उसको दूर करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है सर। और साथ ही साथ आईसीयू का और बेड कम है, न्यूरो ट्रामा का बेड कम है, तो उस बेड की संख्या बढ़ाए ताकि वहाँ के लोगों के अलावे, बिहार के लोगों के अलावे अन्य दूसरे इलाके से भी जो आ रहे हैं बड़े संख्या में रोगी, उनका प्रॉपर इलाज हो सके। तो यही आग्रह करते हुए अपनी बात गुमान सिंह डामोर। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने के लिए मौका दिया। मेरे लोकसभा क्षेत्र रतलाम के पास से 8 लेन एक्सप्रेसवे निकल रहा है। यह एक्सप्रेसवे करीब 90 किलोमीटर हमारे लोकसभा क्षेत्र में है तथा नवंबर 2022 तक तैयार होना है। रतलाम बहुत तेज़ी से महानगर बन रहा है। सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से भी जुड़ा है, हवाई पट्टी भी हमारे यहाँ है, पानी और बिजली की उपलब्धता भी है और औद्योगिक विकास हेतु उपयुक्त स्थान है। हमारे रतलाम नगर और 8 लेन एक्सप्रेसवे के बीच में 4000 एकड़ ज़मीन औद्योगिक पार्क के लिए आरक्षित की है तथा इसमें से 100 एकड़ ज़मीन टेक्सटाइल पार्क के लिए है तथा 1000 एकड़ ज़मीन टेक्सटाइल पार्क के लिए है तथा 1000 एकड़ ज़मीन लॉजिस्टिक हब के लिए है। और इस बाबत मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र शासन से अनुरोध किया है कि यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क और लॉजिस्टिक हब का निर्माण शीघ्र किया जाए। मैं आपके माध्यम से केंद्र शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि
टेक्सटाइल पार्क और लॉजिस्टिक हब का निर्माण शीघ्र करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। डॉक्टर सुमिति जी। Thank you, Honorable Speaker, sir, for allowing me to raise an important issue, as well make a submission. Sir, Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited, Tangentco, was sanctioned rupees 30,230 crore under the special long-term transition loan to Discomfos from the Power Finance Corporation, Rural Electrification Corporation. Sir, due to higher rate of interest, that is 12.65% per year, the projects are being unviable. In order to make the project viable, the rate of interest should be reduced to 9% in line with banks. Sir, in the restructured Accelerator Power Development and Reforms Program, even though the Part B works were completed by Tangentco, an amount of rupees 1,300 crores was not converted from loan to grant due to non-completion of Part A IT infrastructure works. Sir, this happened even after the court ruled in favor of Tangentco. Hence, I make the following request, sir. In the revamped distribution sector scheme, as per the guidelines, 33/11 SS system has been provided. It is requested to approve 110/22 kV SS where the 33/11 kV system is not available. Further, 110/33 kV SS has to be approved due to non-availability of 33 kV source for the newly proposed 33/11 kV SS. In the feeder DT metering works, sir, provision for inclusion of additional features such as MCB, etc. in the LT site to avoid accidents, sir, one more minute, may be approved and partial TOTX model may be permitted and approved for DT and feeder metering. Therefore, I urge the government to accord approval to the request made by the government of Tamil Nadu in this regard, and I also wish to thank them for responding to the letter from the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, our Talabadi, Mr. M.K. Stalin, in the same regard. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक तात्कालिक और अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न को मुझे उठाने की अनुमति शून्य प्रहर के माध्यम से दिया है। हमारे भारत सरकार की रेलवे की एक नीति है, उस नीति के तहत अनमैन्ड क्रॉसिंग सभी बंद करने का एक निर्णय लिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी नीति है कि जो अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद होगी, लोगों के आवागमन की दृष्टि से लोगों को कठिनाई ना हो या उसकी क्रॉसिंग चलती रहे, तो उसके लिए रेलवे अंडर ब्रिज RUB का एक निर्णय लिया गया। इसी दृष्टि में हमारा आकांक्षा जनपद सिद्धार्थनगर है, उस जनपद में एक रेलवे फ्लाईओवर बना और उसके बाद जो क्रॉसिंग थी वो बंद कर दिया गया, जिससे शहर पूरे 2 हिस्से में हो गया। लेकिन उस पॉलिसी के तहत वहाँ पे रेलवे अंडर ब्रिज RUB बनना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में मैंने इसके पहले भी उल्लेख किया था, माननीय मंत्री जी को दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण आपके माध्यम से एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों हमारे वहाँ पे एक संपार फाटक 52C, 53C, 54C, ये तीनों बंद किए जा रहे हैं। अब इन तीनों के बंद करने से लगभग 50,000 से ऊपर की आबादी, जिनका आवागमन रुक जाएगा, जिनके कारण लोगों के कृषि की खेती या लोगों को अस्पताल जाना बंद हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो सरकार की रेल मंत्रालय की नीति है कि अगर हम इस तरह के चाहे फ्लाईओवर पे या अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद करेंगे तो RUB देने का जो प्रोविज़न है उसको सिद्धार्थनगर के इस महरिया के पास जो संपार फाटक सिंहेश्वरी मंदिर से पूरे देश का भी मामला है, बिल्कुल मैं सहमत हूं कौशलेंद्र जी के, आपके यहाँ का भी होगा, तो इस पे एक इस सदन से आपके माध्यम से एक निर्देश हो जाए कि कम से कम आप बंद करें, अनमैन्ड क्रॉसिंग बंद करें या आप देश की। लेकिन उसके साथ रेलवे एक जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, सुविधा देने के लिए देश की जनता को कोई कठिनाई न हो, तो उसके संबंध में ये हमारे RUB बनाने का एक निर्देश दे दें और देश के एक सिद्धांत श्री शौकत राय जी, हम लोग सब संबद्ध करते हैं। Sir, thank you. Through you, I demand of the government that the booster dose for COVID should be started in the whole country immediately. Because of some difference of opinion among the expert committee, India has not started the booster dose.
Now, Omicron has entered India and already number of affected people found in India has come to 40. Maharashtra had 2 more Omicron cases. And because of problem of genome sequencing, it is not easy to find whether a particular patient is infused with Omicron. Because of this in Maharashtra, yesterday, 2 well-known film artists have been affected by COVID, Kareena Kapoor and Amrita Arora, which is a matter of concern for all of us. Sir, I demand that the 3rd dose of the booster dose should start immediately. And young people between 12 and 18 years of age should also, who have not received COVID vaccine so far, they should also get booster dose. Sir, I may just mention that the UK Prime Minister, Boris Johnson, has declared a Omicron emergency in his country, and they have started giving booster dose. It has become a big pandemic, and we are all scared whether 3rd wave will happen, and if it happens, we should not be caught unawares. Thank you, sir. मुकेश राजपूत जी, मुकेश राजपूत, श्रीमती गीता विश्वनाथ, गीता विश्वनाथ, I make my request in Telugu, sir. Sir, మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వము మరి మ్యాండేట్స్ని పెంచడం జరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రిక్వెస్ట్ మీద పని దినాలని సంవత్సరానికి మరి 2021-22 సంవత్సరానికి 2,350 లక్షల మ్యాండేట్స్ మంజూరు గురించి రిక్వెస్ట్ చేయగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూలీ యొక్క పని దినాలను 2,167 నుంచి 2,350 లక్షల వరకు పెంచడానికి అంగీకరించింది. దానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందుకు సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ను కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. మొత్తంగా పని దినాలు 1,18,626 లక్షలు కాగా అందులో ఎస్సీ కాంపోనెంట్ కింద 39,044.99 లక్షలు, ఎస్టీ కాంపోనెంట్ కింద 20,430.66, అదర్ వేజెస్ కింద 59,151.30 లక్షలు. అదేవిధంగా మెటీరియల్ కాంపోనెంట్ కోసం 3,54,248.32 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది సార్. 1 సెకండ్ సార్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాంపోనెంట్ కింద 24,775 లక్షలు, మొత్తం 4,97,650 లక్షలను కోరడం జరిగింది. తక్షణం మంజూరు చేయవలసిందిగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరి ప్రార్థిస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. बसंत कुमार पंडा. अन्य अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय में मेरे लोकसभा क्षेत्र का रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में आपके सामने रखूंगा और आपके माध्यम से मैं रेलवे मिनिस्ट्री से निवेदन करूंगा कि तुरंत इसके ऊपर कार्यवाही करें कि एक जूनागढ़ मेरा क्षेत्र जो है, दोनों आकांक्षी जिले हैं, नवापड़ा और कालाहांडी जूनागढ़ से आवागमन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए विशाखापट्टनम जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं लोग, और 20 लाख लोगों का आवागमन होता है इस रास्ते में। तो एक कलकत्ता के लिए जो इस्पात ट्रेन है टिटलागढ़ में आकर के 12 घंटा रुकती है, तो उसको जूनागढ़ तक एक्सटेंड किया जाए और जूनागढ़ से एक विशाखापट्टनम के लिए एक ट्रेन चालू किया जाए। दोनों काम जरूरी है। केशिंगा में आरओबी पेंडिंग है, उसका भी काम प्रारंभ किया जाए। प्रपोजल जो प्रपोज है कि जूनागढ़ से धर्मगढ़ तक एक्सटेंशन करते हुए रेलवे लाइन को जयपुर तक पहुंचाया जाए। काटावांजी से भाया खड़ियाल
आपका नवरंगपुर जो धर्मगढ़ होते हुए नवरंगपुर तक रेलवे लाइन बनाया जाए, इतना ही आपके माध्यम से रेलवे मिनिस्ट्री से निवेदन है। तुरंत इसमें कार्यवाही करें। आने वाले बजट में कुछ ना कुछ व्यवस्था करने के लिए माननीय रेलवे मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैंने कल 113 लोगों को शून्यकाल में मौका दिया था। अब माननीय सदस्य लिस्ट के अलावा एक्स्ट्रा में बोलना चाहते हैं, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दें। 1 मिनट के बाद किसी को भी मौका नहीं दिया जाएगा। BY राघवेंद्र। Thank you, Honorable Speaker, sir. I would like to draw the attention of this August House to protect the rights and interests of the other traditional forest dwellers who are mainly dependent on the forest for their livelihood. Sir, the Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers was enacted to recognize and vest the forest rights and occupation of forest land in forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations, but whose rights could not be recorded. The main intention was to guarantee the land right, thereby to reduce the interference of the forest department in utilization of the land for their livelihood, sir. Sir, forest accreditation and appropriation of forest tribes and other indigenous tribes in respect of forest land and their habitation to any state or union territory, all such tribals and tribes communities shall be granted subject to the conditions of the forest form prior to 13th December 2005 as per the foregoing provision. Implementation of Forest Rights Act, applicants of the other traditional forest dwellers have been granted forest land under the Forest Rights Act on producing witness documents for 3 generations prior to the 13th December 2005. That means considering 25 years as one generation leads to 75 years for 3 generations, sir. Sir, I am from Shimoga Parliamentary Constituency, wherein more than 50% of the land is covered by forest. Major stretch of Western Ghats falls in my area. More than 1,000 villages and hamlets are in the forest or at the edge of the forest. There exists a symbiotic relationship between villages, forest and wildlife. In fact, they have a tradition to worship and to protect forest for their livelihood, sir. It is evident from the Karnataka State Social Welfare Department data that 1.89 lakh applications were rejected out of 2.94 lakh applications received across the state. In my constituency, that means in Shimoga district alone, 32,245 applications were rejected out of 97,000 applications received, and only 2,400 title deeds distributed so far, sir. The rejection is largely due to difficulty in providing the authentic document by other traditional forest dwellers applicants to prove that they are living there for 3 generations prior to 13th December 2005. I think many of my friends also experienced the same difficulties. Sir, hence I earnest appeal to the Honorable Union Minister through Honorable your bench, sir, Tribal Affairs to review this and to bring suitable amendment to act to make provisions for other traditional forest dwellers considering their living there since 25 years, that means 1 generation on their date of submission of application, sir. Thank you, Mr. Thank you. श्री नितेश भाई पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महोदय, जो विषय मैं उठा रहा हूं, अनुसूचित जनजाति के हित से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस विषय को उठाने का उद्देश्य किसी जाति, धर्म और समुदाय का विरोध नहीं, बल्कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ जरूरतमंद को मिले, यही है मेरा। हमारा संविधान अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण या संविधान की अनुसूची 5 और 6 के विशेष स्थिति जैसे बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन संविधान या किसी अन्य कानून में यह प्रावधान नहीं है कि ईसाई धर्म में परिवर्तन होने के बाद ये लोग उन लाभों को खो देंगे जो धर्मांतरण से पहले उन्हें अनुसूचित जनजाति के तौर पर मिलता है। ये लोग धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक का दोहरा लाभ लेते हैं, साथ ही ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रदान लाभ भी प्राप्त करते हैं। पूर्व में कई संगठनों और सांसदों ने धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जनजाति के रूप में मिलने वाले लाभ को खत्म करने हेतु कानून की मांग
करते रहे हैं। मेरा भी सरकार से आग्रह है कि धर्मांतरण के बाद अनुसूचित जनजाति के रूप में मिलने वाले लाभ को खत्म करने हेतु कानून बनाने पर विचार करें। आभार सर, धन्यवाद। शफीकुर रहमान जी। ऑनरेबल स्पीकर, आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र संभल की ओर दिलाना चाहता हूं। ख़ास तौर से समस्याओं की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। समस्या संभल लोकसभा के मुख्य रूप से संभल, चंदौसी, बैजोई व राजा का सहसपुर मेरे संसदीय क्षेत्र में व्यापार के मुख्य केंद्र हैं, परंतु बड़े ही खेस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल व्यवस्थाएं नामचार की हैं, जैसे कि पहले भी आपको और रेल मंत्री को, भारत सरकार के रेल मंत्री को अवगत करा चुका हूं। संभल से छात्र छात्राओं, किसानों और आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। जनहित में संभल से गजरौला वाया हसनपुर रेलवे लाइन बनाना अति आवश्यक है। चंदौसी से जरगांव तक रेलवे लाइन बनी हुई है। जरगांव से सिरसी तक रेलवे लाइन बनने से चंदौसी, बिलारी, कुंदरकी, सिरसी व आसपास के जनता को मुर्दाबाद तक रेलवे लाइन बनने से इन सबको जनता को मुर्दाबाद, दिल्ली, मुर्दाबाद, इलाहाबाद जाने के लिए सुविधा होगी। संभल में मुर्दाबाद पार्सल रेलगाड़ी शुरू करना भी बेइंतहा ज़रूरी है, जो कि पहले चलती थी। संभल में से मुर्दाबाद रेल बस सेवा दोबारा शुरू की जाए। संभल से मुर्दाबाद, चंदौसी, अलीगढ़ पैसेंजर रेलवे सेवा कोरोना काल के बाद से बंद है, इसको भी जारी किया जाए। मुर्दाबाद रामपुर रेलवे लाइन 410C ग्राम चमरौआ पर अंडरपास बनाना इंतहाई ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि साहब, मैं कई मरतबा हम महरूम हैं, रेलवे लाइन से महरूम है सारा संभल, इसमें रेलवे लाइन की व्यवस्था फ़ौरन कराई जाए, वरना इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नरेंद्र कुमार। बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2000 की अनुसूची 2 के पैरा 26 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि ये स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की नियोजन से अद्भुत दुर्घटना या उसके क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है, तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उसे 25,000 रुपये की दर पर या ऐसी रकम जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जाएगा और यह रकम यथास्थिति मृत या निःशक्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को संदत्त की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम लागू हुआ तब से आज दिनांक तक मृत या निःशक्त व्यक्ति को विधिक वारिसों को 25,000 रुपये की दर से ही अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है, जो वर्तमान परिस्थितियों में बहुत कम है। अतः अनुग्रह राशि को 25,000 से बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपया किया जाए। धन्यवाद। श्री अरविंद सावंत जी। स्पीकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय जो पिछले 7 सालों से मैं उठाता आया हूं, आप जानते हो कि इस हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में 1845 में जीआईपी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की स्थापना हुई और 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल मुंबई के आज के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से थाना तक गई। इसकी स्थापना हमारे ग्रेट विजनरी लीडर जो प्रगति के विकास की विजन उन्होंने उस वक्त रखी थी, ऐसे नाना शंकर शेठ जी ने की। इसलिए वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने घोषणा की थी कि मांग की थी इस स्टेशन को उनका नाम दे। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम गया तो रह गया। अब उसको लेकर
दोबारा मांग हो रही है, और मैं ये मांग पिछले 6 सालों से कर रहा हूँ कि मुंबई सेंट्रल जो टर्मिनस है हमारा, उसको नाना शंकर शेठ मुंबई सेंट्रल टर्मिनस ऐसा नाम दिया जाए। एक सेकंड में, इसकी मांग मैं बार बार करता, मैं प्रार्थना करता हूँ 10 फरवरी को उनका जन्मदिन है, उसके पहले अगर हो गया तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ मुंबई सेंट्रल टर्मिनस को नाना शंकर शेठ टर्मिनस का नाम देकर, ये जो उपकार उन्होंने हमारे सारे देश पर किया हुआ है, पहली रेल एशिया में जो गई वो उन्होंने उनका खुद का घर उसके लिए कार्यालय के लिए गया था। वीरेंद्र सिंह जी, ऐसे नाना शंकर शेठ जी का नाम देकर कृपा करें। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति जी, महोदय। मैं बहुत ही गंभीर चिंता से आपको और देश के संसद को और देश को अवगत कराना चाहता हूँ। सोशल मीडिया का अन्वेषण जब हुआ होगा तो सूचना को सुविधा से आदान प्रदान करने के लिए हुआ होगा, लेकिन सोशल मीडिया आज गलत सूचनाओं का दुरुपयोग करके इस तरह का गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया है कि भारत की मानवीय संवेदना समाप्त हो रही है, सामाजिक सरोकार खत्म हो रहे हैं, मनुष्य रोज रोज मशीन बनते जा रहा है। मैं सुबह देखता हूँ, किसान हूँ, गांव में खेत में काम करने वाले मजदूर, कामगार, स्त्रियां सब सोशल मीडिया पर अपना खबर देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। मैं इस देश को अपने चिंता से अवगत करा रहा हूँ आपके माध्यम से। मैं जानता हूँ कि संसद में कानून के माध्यम से देश में यह व्यवस्था नहीं हो सकती है, मानवीय संवेदना खत्म हो रही, भारतीय परंपरा का, श्रेष्ठ परंपरा का सामाजिक सरोकार खत्म हो रहा है। आप अपने माध्यम से कुछ चिंता करके, मैं जानता हूं ऐसे विषयों पर आपकी चिंतन रहते हैं कि देश को कुछ संदेश देने का प्रयास करेंगे मसूदी जी, कि इस तरह की व्यवस्था स्थापित हो कि मानवीय संवेदना रहे, सामाजिक सरोकार बना रहे और मनुष्य मशीन बनने से बच जाए। जनाब, जम्मू कश्मीर में ट्राइबल्स की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद गर्मियों में जम्मू से कश्मीर का रुख करती है, कश्मीर के पहाड़ों का रुख करती है, और सरमा में, विंटर में वापस जाती है जम्मू। तो उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की है माइग्रेंट्स के लिए कुछ स्कूल्स की, जो पहाड़ों पर वो स्कूल होते हैं, उनमें उनके जो टीचर्स होते हैं। लेकिन ये होता है कि जब वो 6 महीने के बाद जाते हैं, लाखों की आबादी, स्कूल बंद हो जाते हैं और उनमें जो टीचर्स हैं उनको डिसएंगेज किया जाता है। तो इससे वो कंटिन्यूटी नहीं रहती है और लाभ मिलता नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि एक तो इनको बाज़ाब्ता एक कैडर में शामिल किया जाए, तब तक इंटीग्रेट किया जाए वहाँ के स्कूल सिस्टम में विंटर में और वहाँ गर्मियों में, और उसके बाद ताकि ये फिर रिजॉइन कर सकें। तो मेरा सरकार से ये मुतालबा होगा कि इनकी तकर्री के लिए, इनके जो वेजेस हैं, जो सैलरी है वो करने के लिए, और फिर इनको परमानेंट करने के लिए, ताकि इसमें कोई इंटरप्शन ना हो, ऐसा व्यवस्था की जाए। जीटी नामग्याल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस बार आप लद्दाख आए, 3 दिन आपने पेंगोंग झील भी देखा, साबू में किया, आपने पूरे पंचायत के मेंबर्स, हमारे दोनों ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स के साथ आपने इंटरेक्शन किया, और आप ले काउंसिल के सेक्रेटरीट में भी आपने स्वयं विजिट किया। उस वक्त एक मांग जो है उबार के वहाँ आया। सर, लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटोरी बनने के बाद एक अलग किस्म का, एक देश में एक यूनिक यूनियन टेरिटोरी जो है इस सरकार ने लद्दाख को बनाया, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटोरी में 2 ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। पहले जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते थे, वो अभी भी ऐसे ही चल रहा है। मेरे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, नया यूटी बनने के बाद लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्ट जो 1997 में बना, उसको अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। उसमें डिफाइन करने की आवश्यकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का या लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय का या एमएचए का उसमें क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, और ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत दोनों के साथ साथ काउंसिल का क्या कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन एलएचडीसी एक्ट को अमेंड करके लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ज़मीन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, कल्चरल आइडेंटिटी को लेके, ऑन द लाइन ऑफ जो नॉर्थ ईस्ट के 6 शेड्यूल के अंदर जो काउंसिल्स आते हैं, 5th शेड्यूल के अंदर काउंसिल आता है, लद्दाख वाले काउंसिल 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल दोनों के अंदर नहीं आते हैं, तो उनका क्या प्रावधान है। ऐसे अच्छे चीज़ें जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए से लद्दाख को देने की आवश्यकता है। ये मैं आपके माध्यम से सरकार पे मांग करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमती रंजना बेन।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आप श्री के सम्मानीय माध्यम से माननीय आरोग्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण और वडोदरा के शावली विधानसभा में ESI हॉस्पिटल की स्वीकृति करने की मांग रखती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, वडोदरा मध्य गुजरात का प्रमुख शहर है। वडोदरा के आसपास के काफ़ी सारे जिले के नागरिकगण आरोग्य सुविधा हेतु वडोदरा आते हैं। वडोदरा में सरकार द्वारा संचालित सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल एवं MERS हॉस्पिटल कार्यरत है, लेकिन दोनों हॉस्पिटल में आरोग्य संबंधी कई सारी सुविधा की आपूर्ति नहीं है। अभी भी काफ़ी सारे आरोग्य संबंधी चिकित्सक सारवार जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट जैसे चिकित्सक सारवार नहीं है। वडोदरा और उसके आसपास के सभी जिले के नागरिकों को अहमदाबाद जाना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से मेरे वडोदरा में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण हो जाए और साथ में वडोदरा शहर का शावली विधानसभा गुजरात का GIDC का बड़ा एक मंजूसर GIDC भी है। सर, वहाँ पे करीब 35,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारी को आरोग्य सुविधा हेतु वडोदरा आना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री से मांग रखना चाहती हूँ कि ESI हॉस्पिटल की स्वीकृति शावली को दी जाए। धन्यवाद। अवनीश सिंह बिट्टू। स्पीकर साहब, आपकी इजाज़त से मैं आज सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्सेस की बात करना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि आप भी जानते हैं चाहे CRP हो, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम एरिया है वहाँ वो CRP होती है। ITBP बात करें सर, वहाँ जहाँ बर्फीले इलाके हैं, जहाँ पे रात को ऑक्सीजन नहीं होती, वो ऑक्सीजन सिलेंडर ला के सोते हैं सर, वहाँ पे तैनात हैं। CSF की बात करें तो एयरपोर्ट ड्यूटीज़, मेट्रो और सर बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे वो है। SSB की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, यहाँ पे CRP है सर। लेकिन जब उनकी बात आती है फौज, मैं कहता हूँ फौज बिल्कुल उसका मुकाबला नहीं कोई, लेकिन सर फौज के बराबर उनको भी सर जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है, क्योंकि वैसे ही वो भी ड्यूटियां करते हैं सर। अगर घरों की बात करें, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल सर 45% है। तो आज भी 1,45,000 घर हैं सर, उनकी जरूरत है जो है नहीं। 23,000 घर मकान बन रहे हैं, उनको बहुत जल्दी फंड चाहिए सर। और अगर मैं दो बातें आपसे कह के आप क्षमा मांगूंगा सर, क्यों छोड़ रहे हैं? सबसे ज्यादा नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम लागू होगी है सर, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी है। दूसरी सर, उनके जो आत्महत्या सर 134 आत्महत्याएं हुई हैं सर। एक मिनट, क्यों? क्योंकि सर उनका जो लीव है, खासतौर छुट्टियां हैं फौज के बराबर होनी चाहिए। उनकी सर घरों की जो फैमिली या ट्रीटमेंट में वो भी बहुत कमी है। कम्युनिकेशन सर, परिवार से मिलने का काम सर। एक आखिरी सर, उनका सर जो सीनियर ग्रेड है जिन्होंने डिसीजन मेकिंग में, उनमें सर बहुत वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और लाखों की गिनती में सर टोटल फोर्स की वैकेंसीज खाली हैं, वो सरकार भरे। और पैरामिलिट्री फोर्सेस सर हमारी देश की शान आन है सर, इनको मजबूत करें, फौज के बराबर करें। थैंक यू स्पीकर साहब। माननीय अध्यक्ष जी, आज के शून्यकाल में महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि पूरे देश में इस समय मेडिकल कॉलेजों में PG नीट का प्रथम वर्ष के जूनियर रेसिडेंस डॉक्टर का प्रवेश रुका हुआ है, जिसके कारण अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टरों की कमी की महसूस की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवा भी बाधित हो सकती है। मेरी जानकारी के हिसाब से PG नीट के प्रवेश को लेकर EWS एवं OBC वर्ग के डॉक्टरों का विवाद चल रहा है, लेकिन अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के वर्ग में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। तो अतः माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का PG जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर 1 का प्रवेश का प्रारंभ करा दिया जाए, ताकि अस्पतालों में हो रही डॉक्टरों की कमी को कम किया जाए। धन्यवाद। श्री श्रीनिवास पाटिल। I am very much thankful to you allowing me to bring the important matter in my Lok Sabha constituency, Karad. Karad aerodrome is a small unlicensed aerodrome about 3 to 4 kilometers outside the town of the Karad in Satara Lok Sabha constituency.
This aerodrome is used only occasionally for helicopter and small private vehicles and aeroplanes. The frequency of such usage is about 15 to 20 flights per annum. Recently, on instructions from Maharashtra Airport Development Company, Collector Satara has directed that any construction or tree plantation within the radius 20 kilometers from Karad Aerodrome would require NOC from MADC. There is a strong resentment in the area about the arbitrary manner and unclear nature of the restrictions imposed, taken up matter with the district collector and also with the vice chairman of MADC. However, it seems matter will have to be resolved by AAI with proper directions from Office of the Minister of Civil Aviation. I request you kindly look into the matter and direct the concerned authorities to look into the matter of an urgent basis and provide appropriate relief with clear instruction. Thank you, sir. श्री कौशलेंद्र कुमार। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। आज पूरे देश में किसानों का धान की खरीदारी जितना होना चाहिए अध्यक्ष महोदय नहीं हो रहा है। इसका मूल मंत्र है कि माननीय कृषि मंत्री आज नहीं है, मैं उनसे मांग करना चाहता हूं कि 2013 में जो उसका व्यापार मंडल, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव जो धान खरीद रहे थे, उनका कमीशन 2013 में 2.5% था और हर साल उसको बढ़ाना था अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। इसीलिए जितने भी कोऑपरेटिव हैं, सोसाइटी और सहकारी समिति, वो आज धान नहीं खरीद रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसका हर साल जिस तरह से बढ़ोतरी होना चाहिए 2.5% उसका हो, जिससे कि धान की अधिकार प्राप्ति हो। श्री इम्तियाज जलील जी। अध्यक्ष महोदय, ये लाखों मरीजों की ज़िंदगी और मौत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूँगा कि कम से कम आप बेल बजाने से पहले इनकी पीड़ा को ज़रूर सुन ले। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवा राइट टू लाइफ के अंडर में आता है, लेकिन इस देश के अंदर कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसे हम रेयर डिजीजेस की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि उन्हें ना तो किसी सरकारी स्कीम के फ़ायदे दिए जाते हैं, ना इंश्योरेंस का उसे फ़ायदा दिया जाता है। एक उदाहरण के तौर के ऊपर टाइप 1 डायबिटीज़ अब बच्चों के अंदर इतना कॉमन हो चुका है, हर रोज़ उन्हें 4 से 5 इंसुलिन के इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। महीने का खर्च आता है 5,000 रुपये। अध्यक्ष महोदय, मेरे शहर के अंदर उड़ान नाम की एक NGO है, अकेले उसके पास 1,000 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका स्वास्थ्य का, उनके इलाज का कौन खर्चा संभालता है? तो हमारे जैसे कोई दानशूर लोग जाते हैं, कोई गरीब बच्चे की मदद करना चाहता है तो उसको डोनेट करते हैं। 1,000 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अगर उनका इलाज नहीं किया गया, अगर डेली उन्हें 4 से 5 इंसुलिन के इंजेक्शन्स नहीं दिए तो वो बच्चे मर जाते हैं अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हम सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि इसको आप रेयर डिजीजेस के अंडर में अगर निकाल के सरकारी स्कीमों के अंदर, अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक आम बीमारी जो महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर बहुत कॉमन है, वो ऑस्टोमी। ऑस्टोमी का मतलब ये है कि आपका बॉवेल के अंदर जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो पेट के अंदर एक सुराख किया जाता है, एक नली निकाली जाती है और जिंदगी भर के लिए एक बैग लटकाया जाता है, जिसके जरिए वो जो भी करना है उस बैग के अंदर। अध्यक्ष महोदय, बड़ा अफसोस होता है ये जानकर कि ये बैग और जितने भी ऑस्टोमी के पेशेंट्स हैं उनको जो भी इक्विपमेंट्स लेना पड़ता है, ये एक भी इक्विपमेंट हिंदुस्तान के अंदर तैयार नहीं होता है, विदेशों के अंदर तैयार होता है। जब हिंदुस्तान में लाया जाता है तो 12% कस्टम, 12% GST, यानी कि अगर गरीब पेशेंट है तो उसको यहाँ पर कहीं पर भी कोई स्कीम के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हो, US हो या दूसरे फॉरेन कंट्रीज हो, कनाडा, इसको एक डिसेबिलिटी के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाता है। यानी कि इसका मतलब वहाँ के ऑस्टोमी के पेशेंट्स हो या टाइप 1 डायबिटीज़ हो या रेयर डिजीजेस के कितने भी पेशेंट्स हो, इन सबको सरकारी स्कीम के अंदर इंक्लूड करके उनको फ़ायदा दिया जाता है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जितनी भी रेयर डिजीजेस इस देश के अंदर है
उसे गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाए, उसको इंश्योरेंस के तमाम फैसिलिटीज दिया जाए। वरना अध्यक्ष महोदय, हमने इन बच्चों को तड़पते हुए देखा है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे, ऐसे मैंने रिक्शे वालों को देखा हूं इस उड़ान नाम की संस्था के अंदर, जिसके खुद की महिला जो है वो घर का काम करती है, लेकिन उसका बच्चा जो है वो इस बीमारी से पीड़ित है। उसकी कमाई महिला की 2,500 रुपये है, लेकिन बच्चे के ऊपर हर महीना उसे 5,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। अगर ऐसी संस्थाओं की अगर हम मदद नहीं करेंगे, अगर ऐसे रेयर डिजीजेस के पेशेंट्स को अगर हम मदद नहीं करेंगे सरकार की तरफ से, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आज के दिन, मैं खुद जाकर अभी मेरा खुद का चेकअप करवा के आया हूं, यहां पर यह फैसिलिटी अगर मुझे दी गई है तो उन बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही है जो इस रेयर डिजीजेस से पीड़ित है। मैं हाथ जोड़कर सरकार से अनुरोध करूंगा, इस रेयर डिजीजेस के तमाम पेशेंट्स को सरकार की तमाम सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। धन्यवाद। फ्रांसिस्को सर दिन्ना जी। Thank you for giving me this opportunity. Goa is a touristic place. Some years back, the total revenue was depending on mining, but today it depends on tourism. Very close to the city of Panaji, which is the capital, they have got a village called Old Goa, where there are sacred remains of Saint Francis Xavier, who is considered as the patron saint of Goa. Now, when people come there to take homage to the relic, hundreds of vehicles, they are being stopped because of this gate, which is of Konkan Railway. So I would request the Honorable Minister for Railways immediately to construct an overbridge so that people who are connecting to 2-3 talukas, they don't have to wait and spend hours, and so much of petrol is being consumed. Thank you, Honorable Minister. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात आणि माझ्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये द्राक्षाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतलं जातं आणि अवकाळी पावसामुळे झालेलं नुकसान पाहता उर्वरित द्राक्षांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना दिलासा देणं अत्यावश्यक आहे. सरकारला माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की सर्व शिपिंग लाईन्सची बैठक बोलावून द्राक्ष कंटेनरसाठी जहाजांवर पुरेशी जागा उपलब्ध करून द्यावी आणि निर्धारित वेळेत द्राक्ष जागतिक बाजारपेठेत पोहोचतील अशा सूचना देण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे माल वाहतुकीचं जी दरवाढ होतीये त्याच्यावर नियंत्रण आणण्यात यावं. प्रत्येक कंटेनर मागे 2.5 लाख रुपयाचं अनुदान देण्यात यावं आणि आदरणीय शरद पवार साहेब देशाचे कृषी मंत्री असताना विशेष कृषी योजनेअंतर्गत 7% जे विशेष अनुदान दिलं जात होतं ते आता 3%वर आणलं गेलंय. यात पुन्हा बदल करून वाढ करण्यात यावी आणि त्याचबरोबर द्राक्षाचा हंगाम जो 6 महिन्याचा आहे तो 9 महिने होण्यासाठी ज्या प्लास्टिक आच्छादनाची गरज आहे त्याच्यावरचं आयात शुल्क कमी करण्यात यावं. अध्यक्ष महोदय, युरोपची द्राक्षाची मागणी 25 लाख मेट्रिक टन असताना आज आपला देश फक्त 1 लाख मेट्रिक टन द्राक्ष ही निर्यात करू शकतो. तर या दृष्टीने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने सरकारने तातडीने पावलं उचलावी अशी माझी विनंती आहे. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी. मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन विकास मंत्री भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर मां चंडिका देवी धाम प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल मौजूद है. मुझे लगता है कि भारत का एकमात्र ऐसा देव स्थान है जिसके पास अपने खुद के नाम से 64 बीघे विशाल आराजी मां चंडिका जंगलात के नाम से उपलब्ध है. उसके अतिरिक्त उसमें लगा हुआ विशालकाय जंगल विभाग का अपना खुद का प्रकृति हरा भरा स्वरूप प्रतीक है. यह स्थान सड़क से रेल मार्ग से निकट स्थल पर स्थित है. देवस्थल के समीप ही विशालकाय पौराणिक काल के निर्मित सरोवर भी स्थित है जहां हजारों की संख्या में लोग मां चंडिका के दर्शन करने के लिए पधारा करते हैं. किंतु भारत सरकार के वार्षिक कैलेंडर में न होने के कारण उक्त पौराणिक स्थल का वास्तविक विकास नहीं हो सका. इसलिए मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार के पर्यटन विकास मंत्री से मांग करता हूं कि मां चंडिका धाम जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के भारत के पौराणिक एवं ऐतिहासिक नक्शे में शामिल करते हुए उसके विशाल काय परिसर के समुचित विकास एवं समुचित परियोजना एवं जीर्ण सरोवर का वास्तविक रूप से विकसित किए जाने की कार्य योजना की मंजूरी दिलाने की कृपा करें. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी. जुगल किशोर शर्मा. धन्यवाद अध्यक्ष जी. आपका आभार प्रकट करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब से धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास जो है वो हो रहा है और जम्मू कश्मीर में विकास जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जम्मू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और कश्मीर रेल मेट्रो प्रोजेक्ट,
जो हैं वो जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। मेरा आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय से इतना कहना है कि देखिए ये जो जम्मू मेट्रो रेल है ये बन तालाब जम्मू से होकर बड़ी ब्राह्मणा तक जा रही है, लेकिन बड़ी ब्राह्मणा से और 4 किलोमीटर आगे बीजेपुर एम्स है, जिसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को मिलने वाला है। अगर ये मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट बीजेपुर एम्स तक हम ले जाते हैं तो सब सुविधाओं के सहित जो जनता है, जो मरीज हैं, जो स्टाफ है, ये मेट्रो रेल का लाभ लेते हुए एम्स बीजेपुर तक जा सकेगा। मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है मंत्रालय से कि ये जो मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट है ये बीजेपुर तक जो है वो एक्सटेंड किया जाए, ताकि मेट्रो रेल बीजेपुर तक पहुंचे और पूरे जम्मू शहर के लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। अच्युतानंद सामंत जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, आप मुझे एक सुযোগ दिए जीरा और में बोलने के लिए। एंड थ्रू यू सर आई ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर कोल एंड माइंस towards the share of green energy cess for Odisha. We know Odisha produced 153.85 million tons of coal, contributing to about 25% of the nation's production in 2021. The center is collecting clean energy cess of 400 rupees per ton, which amounts more than 50,000 crore. Sharing of the cess collected with the state can be utilized for economic development of the coal mining areas and the affected people. This will also accelerate the state development in the aftermath of the COVID pandemic situation. I humbly request the Minister of Coal and Mines to consider this case, sharing of 60% of the cess as demanded by the state government amounting to 30,000 crore. Thank you very much. कुनार हेमाराम। Thank you very much, Speaker Sahib, for giving me the opportunity to raise a matter of urgent for my constituency. Sir, Santhal peoples are mainly inhabitant of Assam, Bihar, Jharkhand, Odisha, Tripura and West Bengal. They are scattered almost every state in the country, including NCT and NCT of Delhi. Santhal peoples are also living in our neighboring countries like Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, etc. More than 1 crore people speak in Santali language in India. The language is included in 8th schedule of the constitution in the year 2003. The Santals are being taught in primary to university level from 2008 in West Bengal under the state government education board. In the 40 Santali medium high school and 45 colleges are teaching Santali language in West Bengal. There are no separate board. So I request to the concerned minister to set up a separate board for Santali medium schools. Thank you. श्री नारायण भाई कचाड़िया। माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र अमरेली गुजरात में 2014-15 में जो 2 रेलवे लाइन का दोहरीकरण का काम मंजूर किया गया था, उनमें से एक ढस्सा से खिजड़िया लोनीधार से जेतलसर तक का काम आने वाले 2022 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, लेकिन वो भी टाइम से 1.5 साल बाद पूरा होगा। लेकिन उसके साथ दूसरी दोहरीकरण का लाइन का काम जो है दोनों एक ही साथ मंजूर किया गया था, खिजड़िया से अमरेली, चलाला, धारी, विसावदर और वेरावल सोमनाथ। अध्यक्ष जी, जो सोमनाथ है हमारा देश का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और पूरे देश के लोग वहाँ सोमनाथ दादा के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ही दिक्कत है कि ये लाइन अभी तक का उसका काम शुरू नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से और आपके सहकार से मैं माननीय रेल मंत्री जी से कई बार इस हाउस में एक क्वेश्चन उठा चुका हूँ 377 और 0 में, तो ये काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए और मेरे क्षेत्र को ये दोहरीकरण का काम और लोगों की जनता को वहाँ का लाभ मिले और हमारे क्षेत्र का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत भार्गव। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा मध्य प्रदेश के
राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर 4 लाइन सड़क की स्वीकृति होकर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र बरखेड़ा से बुधनी तक 12.50 किलोमीटर लंबाई की सड़क मार्ग रातापानी वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में 4 लाइन सड़क निर्माण कार्य की अनुमति प्राप्त नहीं होने से 4 लाइन सड़क निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। इस मामले को माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से 23 सितंबर 2020 को सदन में उठाया था। माननीय वन मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध है कि वर्तमान क्षेत्र में 4 लाइन सड़क की स्थिति यथावत है। सड़क निर्माण की एनओसी में कोई प्रगति नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि रातापानी वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्षेत्र में 4 लाइन सड़क निर्माण की एनओसी शीघ्र प्रदान कराने का कष्ट करें। श्री महेश साहू। Honorable Speaker, sir, I am really grateful before you that you are giving scope and today you have given me scope to raise some points of the urgent matter. Sir, you know better that I am very much thankful to the government that this government under the leadership of Narendra Modi ji has selected my Dhenkanal district under parliament segment as aspirational district. In the meantime, that the Honorable Prime Minister has announced to set up medical college in each aspirational district. I request the government, and there is no word from the government in regard to the medical college in every aspirational district as announced. Government should come forward to set up this as an aspirational district. Thank you, Honorable Speaker, sir. Thank you. Nagar sir. Thank you, sir. Sir, due to left-wing extremism, threat, uninterrupted helicopter services is a critical requirement for the security forces for evacuation of casualties, movement of troops, maintenance of forward posts. As a result of activities of left-wing extremism, deployment of Central Armed Protection Forces has to be made and state government has to bear unforeseen expenditure. The government of India claimed rupees 4,561.23 crores towards deployment charges of CAPFs up to 2020, sir. Our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik of Odisha has requested for deployment of 02 MY-17 or equivalent helicopter, and also to consider the decision of charging the state's government for deployment of central forces and requested to waive the amount charged towards deployment of central forces in Odisha. Odisha state is facing frequent natural calamities on which lot of states' resources are utilized. I therefore, through you, request the Union Home Minister, sir, to consider the request regarding deployment of helicopter and waive of deployment charges of CAPFs in Odisha with immediate effect. Thank you, sir. आपके माध्यम से ध्यान अपनी संसदीय क्षेत्र हाथरस की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी लोकसभा क्षेत्र हाथरस के अंतर्गत कुछ गांवों की पेयजल की बड़ी समस्या है। भूजल में खारा पानी है, जिसके कारण पीने के पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। स्थानीय लोगों को पानी पीने वाला करीब 5 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। मेरी विधानसभा सिकंदरा वो लगभग 20 गांव और विधानसभा सादाबाद में 50 गांव खारे पानी की समस्या से प्रभावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र हाथरस की ओर पेयजल की समस्या का निवारण करें। धन्यवाद। वर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसी साल दूसरी लहर में देश के लोगों ने मौत को काफ़ी करीब से देखा था। उसी के साथ हमने ये भी देखा था कि हमारी जान बचाने के लिए देश के सारे डॉक्टर, सारे नर्स, सारे सफाई कर्मचारी और सारे पुलिस के जवान भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हमारी जान बचाने के लिए अपने घर के बाहर निकले। इन सभी को हमने कोरोना योद्धा के नाम से पहचाना। कोई इनको कोरोना वॉरियर बोलता था, कोई इनको फ्रंट लाइन वर्कर बोलता था।
दिल्ली में जहां 25,000 लोगों की जान गई, वहीं 300 से ज़्यादा कोरोना योद्धाओं ने भी अपनी जान ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान को गंवाया है। दिल्ली सरकार ने उस समय ये वायदा किया था कि इन सभी कोरोना योद्धाओं को 1-1 करोड़ रुपए देगी, मगर बहुत ही दुख की बात है कि 300 से ज़्यादा एप्लीकेशन मिलने के बाद भी अभी तक केवल 5 लोगों को, जो हमारे कोरोना योद्धा थे, हमारे शहीद हो गए, उनको उनका धर्म देखते हुए वोट बैंक के नाते उनको 5 परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिया है। तो मैं आपके माध्यम से, अगर भारत सरकार दिल्ली सरकार से बात करे और वो अपना धर्म निभाते हुए, अपना वायदा निभाते हुए उन सारे कोरोना योद्धाओं को 1-1 करोड़ रुपए दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब जाके कुछ और वायदा करते हैं, दिल्ली में अपने वायदे को भूल जाते हैं। अगर वो सारे परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि दे कोरोना योद्धाओं को, तो इन सारे लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये बीमारी खत्म नहीं हुई है और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मदद भी मिलेगी। धन्यवाद। श्री चंद्रसेन जादौन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर प्रदान किया। भारत धर्म यात्रा का देश है। भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है। वासुदेव कुटुंबकम तथा विश्व मंगल की कामना करने वाले हिंदू समाज को वैश्विक दायित्व पूरा करने का अधिकार है और करोड़ों हिंदू इस काम को कर रहे हैं। भारतवर्ष में हिंदू धर्म में 4 प्रकार की जाति व्यवस्था है और वह उन्हीं लोगों के लिए है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं। जो लोग जनजाति वर्ग के अपनी जाति परिवर्तन कर चुके हैं और जनजाति वर्ग के नहीं रहे हैं, उन्हें जनजाति वर्ग में प्राप्त आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा देखा गया है, कुछ जनजाति वर्ग के लोग आरक्षण भी ले रहे हैं तथा जनजाति वर्ग से अपना धर्म बदल चुके हैं। ऐसे दोहरी चाल वालों को आरक्षण सुविधा से दूर रखा जाए। धन्यवाद। सभा की कार्रवाई 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है।